بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ان کے گھر والوں نے، اس مرحوم کے گھر والوں نے یہ اہتمام کیا کہ مرحوم کے لیے ایصال ثواب کی مجلس رکھی۔ بہت اچھا کام کیا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آج ان کی لحد میں، ان کی گریو میں، مرحوم کی گریو میں عید ہو گئی، اس لیے کہ جب آپ فاتحہ پڑھیں گے، جب آپ صلوات پڑھیں گے، جب دو آنسو نکالیں گے، تو یہ جو تحفہ پہنچے گا نا، یہ جو گفٹ پہنچے گا مرنے والے کو، وہ وہاں سے وہ دعا دے گا کہ میرے بچوں نے، میری فیملی نے مجھے یاد رکھا، جس کی وجہ سے میرے درجات بلند ہوئے۔ اس لیے کہ دوستو یاد رکھو، وہاں پہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کے لیے انسان ترستا ہے، وہاں سب کو حساب دینا ہے۔ اسی لیے 2 رکعت جو ہم نماز پڑھتے ہیں مغفرت کی، مغفرت والدین، اس میں ہم 10 مرتبہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ بہت ہی ریکمنڈڈ نماز ہے، یہ میں مرحوم کی اولاد کو بول رہا ہوں۔ آپ پڑھتے ہوں گے، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو میں ایک ریمائنڈر ہے، جو بھی سن رہا مجھے آواز غم کے اوپر، ایک ریمائنڈر ہے آپ کو۔ یہ کیا؟ یہ 2 رکعت نماز مغفرت والدین، باپ کے لیے یا ماں کے لیے، یا ماں باپ اگر کسی کے نہیں، اللہ ان پہ رحم کرے، نہیں ہے تو ان کے لیے یہ 2 رکعت نماز پڑھنا۔ ایک علم ہے اور 10 مرتبہ 10 ٹائمز علم کے بعد بولنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار تو رحم کر، رحم یعنی بلیسنگ بھیج، تو رحم کر، تو کرم کر میرے ماں باپ کے اوپر اور مومنین و مومنات کے اوپر۔ اس کے بعد کہا، اس کے بعد کیا ہے؟ ان کے حساب میں رحم کر۔ حساب، ایک چیز یاد بولوں میں آپ کو، ہمارے ذہن میں، ہمارے بیک آف آور مائنڈ کبھی بھی یہ نہیں رہتا کہ مجھے حساب دینا ہے۔ آپ انصاف سے بولو۔ روز رات میں جب آپ بستر پہ بامبے میں سوتے ہیں، کبھی آپ سوچتے ہیں کہ اگر کل آج تو میں یہ نرم بستر پہ سو رہا، وی ڈونٹ نو کل کی صبح میں کہاں سوؤں گا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اگر رات میں میرا انتقال ہو جائے، پاسبلٹی ہے انتقال ہو جائے، تو کل کی رات میں کہاں سوؤں گا؟ ایک ایسی جگہ پہ جا کے سوؤں گا، آرام باغ میں، کہ جو سب سے زیادہ نیرو ہے، سب سے زیادہ چھوٹی ہے، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میری اولاد مجھے لے جا کے وہاں لٹا دے گی، اور میں ایک چھوٹی سی لحد میں، بامبے میں، اپنے بیڈ روم میں تو میں ایئر کنڈیشن میں سو رہا، اپنا بیڈ روم تو بہت بڑا ہے، بڑے آرام کے ساتھ اپنے اون پیلو پہ سو رہا، لیکن وہاں پہ کوئی اون پیلو نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بیڈنگس نہیں ہے، وہاں پہ کوئی روشنی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی لائٹ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہے۔ وہاں پہ کیا ہے؟ میں ہے، میرے اعمال۔ اعمال اگر اچھے ہوں گے، یہ یاد رکھو، اعمال اچھے ہوں گے تو تمہاری چھوٹی سی گریو اتنی وائڈ ہو جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی، بہترین تم کو بیڈنگس ملیں گے، بہترین تم کو بیڈ ملے گا، بہترین محلات ملیں گے، لیکن کب؟ تمہارا حساب ہونے کے بعد۔ حساب ہونے کے بعد یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ چیک یور سیلف۔ ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ مجھے بھی حساب دینا ہے۔ کس چیز کا حساب دینا ہے؟ جو میں نے، میرے جو گڈ ڈیڈز ہے اور جو میرے بیڈ ڈیڈز۔ گڈ ڈیڈز کا تو حساب نہیں ہے، بیڈ ڈیڈز کا حساب ہے۔ میرے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے گناہ کا حساب۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا تواب الرحیم، اللہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، یا تواب الرحیم، یا ارحم الراحمین۔ اس کی تسبیح پڑھو، یا کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں تواب الرحیم ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں۔ تو یہ اللہ کے نام کا ذکر الہی اتنا تم کو اجر عظیم عطا کرتا کہ یو کانٹ بلیو جو اللہ تم کو اس کا اجر عطا کرتا، یو کانٹ بلیو۔ اس لیے کہ تسبیح، اور امام علی علیہ السلام دعائے کمیل میں کیا بولتے ہیں؟ دعائے کمیل میں بولتے ہیں کہ ذکر ہو شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے، اللہ تیرا ذکر شفا ہے۔ بہترین تسبیح ہے کہ اب تم بیماریوں سے بچ سکتے ہو، تم پریشانیوں سے بچ سکتے ہو، تم بیماریوں سے بچ سکتے ہو، ایسے بیماریوں سے بچو گے کہ تم تصور بھی نہیں کرنا، اتنی تم بیماریوں سے بچو گے اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے۔ اس لیے کہ میں نہیں بول رہا، یہ میرے ورڈز نہیں، یہ امام علی کے ورڈز ہیں، یہ میرا مولا بول رہا کہ ذکر ہو شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے، اللہ تیرا ذکر شفا ہے، اور ایسی شفا ہے یہ کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
ऐसी शिफा देता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बीमार को भी शिफा देता, मरने वाले को भी शिफा देता। तो अगर रोज हम मेरे अकाउंट में, प्लीज गौर से सुनो, रोज मेरे अकाउंट में अल्लाह के ये नाम, प्लीज गौर से सुनो, ये बरसी की मजलिस में मैं पहला मेरा तोहफा है, पहला गिफ्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं, पहला मेरा मैसेज है जो आपको दे रहा हूं। अगर रोज 4 अल्लाह के नाम लो, या 8 अल्लाह के नाम लो, या 9 अल्लाह के नाम लो, तो तुम्हारी गुड डीड्स में इंक्रीज होगा, तुम्हारा अकाउंट प्लस 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 होगा। तस्बीहात अरबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु, 18 टाइम्स पढ़ो, 18 टाइम्स। अब पढ़ने के बाद 3 मरतबा बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कितनी देर हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु, 18 टाइम्स बोलो। उसके बाद बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुबह में और शाम में तुम्हारे गुड डीड्स ऐसा इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, तुम्हारे बैड डीड्स रेज होते। बैड डीड्स गुनाह तुम्हारे रेज होने लगते। कैसा रेज होते? तुम्हारा हिसाब में कमी होती है। हिसाब में देखिए, कोई ये जहन में मत रखो कि तुम्हारा हिसाब में कोई नहीं बच सकता सिवाय शहीद के। यह नजर करम में मौला ऐसा हो जाए, इसलिए कि हम खुद बोल रहे हैं। तलखीन जो हमारे पास रखी गई वो हिसाब के बारे में तो है, आपके क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस के आंसर है जो नीचे क्वेश्चंस होने वाले। कभी मेरे जहन में है कि मुझसे भी कोई सवाल किया जाएगा। तलखीन, आप हजारों मैयतों में गए और जाकर आपने देखा कि कैसे नीचे हमारा लिए तलखीन शोल्डर को हिला के बोलते, इस्माई फम, फिर नाम लेके बोलते कि सुन और समझ कैसे तुम्हारे से हिसाब लिया जाएगा। ये सवाल होगा, ये सवाल होगा, ये सवाल होगा, ये सवाल होगा, ये सवाल। कोई इनकार है? हम जाते एक फॉर्मेलिटी के लिए, सुनते, वापस आ जाते। थिंक व्हाट आई एम सेइंग, इसलिए कि नीचे हिसाब तो है, 100% हिसाब है। अगर हिसाब नहीं है तो तलखीन क्यों है? फिर ये क्वेश्चंस क्यों है तलखीन में कि तुम्हारा किबला क्या है, तुम्हारा किताब अल्लाह की कौन सी किताब है, किताब क्या है, किबला क्या है, मजहब क्या है। 12 इमामों के नाम लिए जाते, 13 मासूमीन के नाम लिए जाते और बताया जाता है देखो सिरात हक है, सिरात से जाना, जन्नत और जहन्नम हक है, सवाल और मुनकिर और नकीर हक है। अल्लाह हमको माफ कर दे, अल्लाह हमको माफ कर दे। तो ये बस अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करो कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ। तो तलखीन इज सो इम्पोर्टेंट। तो नीचे हिसाब देना, उसके लिए क्या करो, रोजाना 18 टाइम्स तस्बीहात अरबा और 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, सुबह में, फजर के बाद और रात में। शेख अब्बास खुम्मी जैसा हमारा मर्जा मफातिल जिना में लिखता है कि अल्लाह इतना अजर देता, इतना सवाब मिलता, सवाब मिलेगा, रहमत मिलेगी, हमारे गुनाह रेज होंगे, हमारे बैड डीड्स रेज होंगे, हमारे गुड डीड्स में इंक्रीज होगा। कब होगा? जब आप ये करेंगे तस्बीहात अरबा। उसके बाद एक और तस्बीह देता नबी इब्राहिम की तस्बीह। ये भी तुम्हारे गुनाहों को माफ कराएगी और तुम्हारे अच्छा ये तस्बीह जब आप पढ़े ना, तस्बीहात अरबा, बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर आप बोल रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उसके बाद ये बोलो कि अल्लाह, मैं मरहूम की औलाद को बोल रहा, मरहूम की फैमिली को बोल रहा, या जो भी सुन रहा मुझे, ये बोलो कि अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को दे दे, इसका सवाब सारे मरहूमीन को दे दे, जो मैंने तस्बीहात अरबा पढ़ी है इसका सवाब मेरे माँ बाप को दे दे। यानी आपको भी मिल रहा, उसका करम इतना है, उसकी रहमत इतनी है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अल्लाह अपनी रहमत को नाजिल करते हुए खुश होता है। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह ऑलवेज रहमत को नाजिल करते हुए खुश होता, अजाब को नाजिल करते हुए खुश नहीं होता। वो चाहते ही नहीं कि उसके बंदों के ऊपर मैं अजाब नाजिल करूँ, वो चाहता कि उस पर अल्लाह के रसूल की मशहूर हदीस है कि या अली, अगर तुम्हारे दुश्मन नहीं होते तो अल्लाह जहन्नम को खल्क नहीं करता, जहन्नम को पैदा नहीं करता। तो आप सोचो कि कितना अल्लाह रहमत, कितनी रहमत है। हमेशा याद रखो, ये मत बोलो कि ओ नीचे अल्लाह की अज़ाब नाज़िल नहीं करना चाहता, वो चाहते ही नहीं है। एक चीज याद रखो, मेरे जुमले गौर से सुनो, अल्लाह का जो खैर है ना, उसके ऊपर उसकी रहमत है, उसके ऊपर उसकी रहमत है। रहमत पहले है, अजाब बाद में। उसकी रहमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। रहमत ब्लेसिंग, ये महीना रहमत का है। रहमत ऐसी छाई हुई है,
कायनात पे, आलमीन पे अल्लाह की रहमत छाई हुई। अगर रहमत नहीं होती अल्लाह की, अल्लाह गफूर रहीम नहीं होता, अल्लाह अर्रहमान राहिमीन नहीं होता, अल्लाह अगर तवाब रहीम नहीं होता, अल्लाह करीम और रहीम नहीं होता, तो एक आदमी जन्नत में नहीं जा सकता था। सिर्फ खानदान अहले बैत को छोड़ दो, मासूमीन को छोड़ दो, मैं खाकी इंसान की बात कर रहा हूं, सारे के सारे जहन्नुम में जाते हैं। ये उसका करम है, उसके लिए नाम है। इस नाम की तस्वीर कि जिससे तुम्हारे दर्जात को ऐसी बुलंदी मिलती है, जिससे तुम्हारे दर्जात इतने बुलंद होते हैं, तुम्हारे बैड डीड्स रेज हो जाते हैं, सारे के सारे बैड डीड्स रेज होते हैं व्हेन यू रिसाइट द नेम्स ऑफ अल्लाह। इतना सवाब है, तुम्हारे गुड डीड्स इंक्रीज होने लगते हैं। उसकी रहमत ऑलवेज बड़ी है, पहली रहमत है, फिर उसका तो तस्बीहात अरबा पढ़ के फायदा इसमें यह है कि आप अपना भी गुड डीड्स को बढ़ा रहे, अपने भी नेकियों को बढ़ा रहे, अपने भी गुनाहों को माफ करा रहे और अपने माँ बाप के भी माफ करा रहे, सारे महरूमीन के माफ करा रहे। अब सोचो, तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप कल तक पढ़ते थे, 1 साल पहले तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, अब वो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर तुम उनके बदले में पढ़ रहे, ओह, यू विल नॉट बिलीव, यू विल नॉट बिलीव जो अजर है तुमको, जो अजर है उसका। क्यों? कि तुमने माँ बाप के लिए किया है, वालिदैन के लिए किया। रब्बे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे अरहमहुमा कमा रब्यानी सगीरा, रब्बे अरहमहुमा कमा रब्या, ए परवरदिगार तू रहम कर हमारे माँ बाप के ऊपर जैसे इन्होंने बचपने में हमारे ऊपर रहम किया। ये इतना सवाब है कि यू विल नॉट बिलीव जो अल्लाह तुमको अजर अजीम अता करेगा। तुम तसव्वुर नहीं कर सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते जो अल्लाह तुमको अजर अजीम अता। क्यों? इसलिए कि तुमने अपने माँ बाप को दिया। कल 1 साल पहले तक तुम्हारा बाप पढ़ता था, तुम्हारे मरहूमीन पढ़ते थे, लेकिन आज तुम उनके बिहाफ में पढ़ रहे। और अल्लाह ये बोलता कि जब तुम मेरी दूसरे बंदों के लिए करोगे, और ऐसे बंदों के लिए कि जो मजबूर है खबर के अंदर, जो हेल्पलेस है, जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए अगर तुम करो। देखिए, मैं दोनों मिला के आपको बता रहा कि शाबान के महीने में रहमत और अपने माँ बाप को देना क्या, अपने बाप को मजलिस के बेहतरीन जो ईसाल सवाब है वो मजलिस से हुसैन है। मजलिस से बेहतर तो कोई ईसाल सवाब नहीं, बेहतरीन ईसाल सवाब आपने दे दिया माँ बाप को। अब क्या करो? अब बस तस्बीहात अरबा पढ़ो। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब है कि अल्लाह कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है, कोई पावर नहीं है सिवाय तेरी ताकत के, सिवाय तेरी ताकत के कोई ताकत नहीं। अल्लाह सिर्फ तेरी ताकत है और कुछ नहीं है। इससे बड़ा अजर, इससे बड़ा सवाब नहीं है दोस्तों। व्हेन यू ट्रस्ट योर अल्लाह, इसका मतलब है यू आर ट्रस्टिंग योर अल्लाह, यू आर सेइंग कि अल्लाह कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है सिवाय तेरी ताकत के। व्हेन यू ट्रस्ट योर अल्लाह, अल्लाह तुम्हारे ऊपर वो रहमत को नाजिल करता, तुम्हारे काम ऐसे बनते। तो ये तस्वीर पढ़ो। ये शाबान का महीना, इसलिए मैं सिर्फ अल्लाह के नामों की रहमत आपको बता रहा हूं कि जो मरहूम माँ को और बाप को देना है। उसके बाद वो तस्वीर दे रहा जो नबी इब्राहिम का जिससे इम्तिहान लिया गया। जनाब इब्राहिम कितने बड़े नबी हैं, खलीलुल्लाह। उनकी सुन्नत आज तक हम करते, उम्मत मोहम्मदी में उनकी सुन्नत है वाजिब हज। हज उन्हीं की तो सुन्नत है। खाने कबा के आज हम ज़ियारत करते, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। और 14 मासूमीन की ज़ात, सारे मासूमीन की ज़ियारत नसीब, सामेरा, काज़िमैन, सामेरा, नजफ़ अशरफ, करबला मोहल्ला, मशहद मुक़द्दस, मदीना मुनव्वरा और मक्के मज़ार। ज़ियारत मासूमीन के लिए और अल्लाह के घर के लिए बावाज़ बुलंद सवाब पड़े। आपने गौर किया कि जो अजर मिल रहा, हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह हमको इतना अजर दे रहा सिर्फ तस्बीहात अरबा पढ़ने का, तस्बीहात अरबा पढ़ने का ही। उसके बाद दूसरी तस्बीह जो नबी इब्राहिम, इतना बड़ा नबी, यानी 1,24,000 में, 1,24,000 में हमारे नबी जो है अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सरदार है, अंबिया के सरदार है। और सेकंड नंबर पे जनाब इब्राहिम है, थर्ड नंबर पर नबी मूसा है, फिर फोर्थ नंबर पर नबी ईसा है, सेकंड नंबर पर नबी ईसा है, नबी इब्राहिम है कि जिनको अल्लाह ने रसूल भी बनाया, नबी भी बनाया और इमाम भी बनाया। वो नबी से जब इम्तिहान लिया गया जनाब इब्राहिम से, जिस तस्बीह के जरिए माल का इम्तिहान लिया गया, वो यही तस्बीह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्बुहुन खुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत वर अल्लाह रब्ब। दोस्तों, इतनी प्यारी तस्बीह है, इतनी प्यारी तस्बीह। ये भी पढ़ो, ये भी 18 मरतबा पढ़ो, सुबह पढ़ते, शाम पढ़ो, जितनी दफ़ा चाहे पढ़ो, 24/7 पढ़ते रहो।
ये पढ़ के बोलो कि अल्लाह इस तस्बीह का वास्ता और हमेशा बोलो मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता। तुम अगर मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता नहीं दोगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। ये बोलना कि मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता और इस तस्बीह ये तेरे नाम की तस्बीह का वास्ता कि परवरदिगार तू इसका सवाब मेरे माँ बाप। अपने लिए तो बोलो ही मत, डोंट टॉक अबाउट योरसेल्फ। अपने लिए तो बोलो ही मत, सिर्फ माँ बाप के लिए बोलो, मरहूमीन के लिए बोलो कि ये टोटल गिफ्ट जो मैंने पढ़ा है अब तक पूरी जिंदगी में, अल्लाह इसका सवाब हमारे माँ बाप को दे दे, सारे मरहूमीन को दे दे, भाई बहन को भी सारों को दे दे। बस आप खाली इतना बोलो कि अल्लाह तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता अब तक जो पढ़ी है पूरी जिंदगी में इसका सवाब माँ बाप को दे दे, भाई बहनों को, पूरी जमीन मोमिनीन मोमिनात, ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन, मातमदार, महाराज आलम सबको दे। इससे बेहतर कोई अमल नहीं होगा। ये पढ़ने के बाद फिर आपको बोला 3 मरतबा बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशा अल्लाह ला खुव्वता इल्ला बिल्लाह। वेरी सिंपल, ये कुरान की आयत 4 आयतें बता रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशा अल्लाह ला खुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपको मालूम ये पढ़ने से और क्या फायदा है? आपको नजर नहीं लगती। बैड आई जो होती ना, नजर से बचना चाहते, बैड आई से बचना चाहते तो इससे बेहतर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशा अल्लाह ला खुव्वता इल्ला बिल्लाह। जस्ट से 3 टाइम्स, जस्ट से 3 टाइम्स, देन यू विल सी कि रहमत खुदा कैसे नाज़िल होती। तुम घर से पढ़ के निकलते वक्त भी जो है, घर से निकलते वक्त भी पढ़ सकते हैं। ये भी बोलो कि अल्लाह इसका सवाब भी मेरे माँ को दे दे, मेरे बाप को दे दे, मेरे भाई को दे दे, बहन को। उसके बाद बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसको आय करीमा बोलते हैं। ये भी 3 मरतबा पढ़ के अल्लाह की बारगाह में हदिया कर देती, इसका सवाब भी मेरे। मैं सिर्फ आपको रहमत बता रहा, अपने माँ बाप को भेजना क्या, ईसाले सवाब क्या करना, ईसाले सवाब क्या करना। उसके बाद देखो कि तुम्हारी माँ की बारगाह में, तुम्हारे बाबा की लहद में, मरहूम की लहद में, जब उनकी औलाद ये पढ़ के देगी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो कैसा उनको अजर अजीम वहाँ पे मिलेगा। तुम्हारे हक में, अगर तुम्हारी मिसाल के तौर पर जिंदगी 60 ईयर्स की है, अल्लाह 70 कर देगा, 70 की है 80 कर देगा। इसलिए कि ये सारे मरहूमीन की दुआएं तुम्हारे साथ हो जाती। जैसे नमाज शब पढ़ने वाले के लिए कि जो शब नमाज पढ़ता अल्लाह उसकी ज़िंदगी को बढ़ा देता, इसलिए भी बढ़ा था कि उसके साथ दुआएं होती। अल्लाह की बारगाह में कौन दुआ करता? मरहूमीन दुआ करते कि परवरदिगार इसकी ज़िंदगी में और बरकत दे, इसको सेहत के साथ रख, कि जी अगर ये सेहत के साथ रहेगा, ज़िंदा रहेगा, तो ये हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेगा। इस्लाम में सबसे ज़्यादा सवाब यही है कि तुम दूसरों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। उसका एक अजर अजीम अल्लाह बताया गया, इसका एक अजर अजीम बताया गया कि कैसा अजर अजीम अल्लाह तुमको अता कर देता कि अगर तुम जो है इस तरह से काम करते। ये तस्बीह हो गया। उसके बाद बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। ये भी अजीब कि अल्लाह मैं तेरे ऊपर सारी चीज़ों को छोड़ा। फिर आप बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बनल्लाह निअमल वकील। ये 4 अल्लाह की, ये 4 आयतें अगर कोई पढ़े, अब पढ़ के अल्लाह की बारगाह में से हाथों को उठा के दुआ करे कि परवरदिगार इसका सवाब मेरे बाप को दे दे, इसका सवाब मेरी माँ को दे दे, भाई को दे दे, बहन को दे दो, जमीय मोमिनीन और मोमिनात को दे दो। फिर देखो कि अल्लाह अजर अजीम क्या अता करता। सलवत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।